Hello, students. Good evening. Good evening to everyone. Good evening, Gayatri, Sakshi. Hello. Okay, so we have 2 more minutes to go. So we are going to start the class very soon. Okay. So before starting the class, just tell me one thing. Yes, JNV Rajkot, you have any doubt? You have raised hand, beta. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. If you have any sort of doubts. Good evening, JNV Ahmedabad. Good evening, Brijesh. So you all have your tabs with you. So are you personally joining with your tablet, or you are sitting in an class of what you can say, a shared screen, a room full of students like that you're sitting, or you have individual tablets with you from the school only. I'm not saying your own individual. The school has provided tablets. That tablets. How is it? You have your own tablet, or you're sitting together with your friends in a class? Yes. Okay. Great, great, Janvi Ahmedabad. Then change your name. Then change your name, Janvi Ahmedabad. I want every student's name to be visible on my screen because I will be tracking how many of you are coming every day, how you're performing in the class. Are you, attentive or not in the class? So I want to get recognition of my students with me, right? So you know me, you are seeing me on the screen, but I should also know my students, right? So their names and how they're performing in the class, if they're answering in the class. Great. Great, everyone. So it's exactly 5 o'clock. We're going to start the class. So, yes, good evening. As you know, Beta, we have started the principle of inheritance and variation chapter. And in the last class, we have already dealt the laws of Mendelism. We have also understood about the non-Mendelian inheritance, that is incomplete dominance, codominance, and multiple allelism. Okay, so these three together we call them as intragenic interaction. Okay, so that means there will be an individual gene. So that gene will be having many alleles, or that gene is whole and soul responsible for all the possible interactions. Okay, so two more are left, which we are going to do it today. That is polygenic inheritance and pleiotropy. Okay, you clearly understood till now what we have done? Okay, so one more job that you have to do is you have to consistently be regular on reading the NCERT. ओके एनसीईआरटी पढ़ते रहो बेटा. जब आप एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, जो क्लास में होता रहेगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी. ठीक है, कुछ भी आपको डाउट्स है आप मुझे पूछते रहिएगा चैट बॉक्स में. एंड मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग द मॉक क्वेश्चन पेपर, डीपीपीज एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. Okay, so there's a question on the screen. Okay, this is the concept for from last class. ठीक है, last class का concept है बेटा. ABO blood group system is due to multifactor inheritance, incomplete dominance, multiple allelism, none of the above. So you have to answer the question. Yes, very good, Chetan, Gautam, Daksh, Vijendra, Ahmedabad. Daksh beta, I think, yeah, you have corrected it now. Okay. Great, Bhavnagar, everyone. So this is very easy question, right? So we have already done this in the last class, that is multiple allelism, incomplete dominance, and codominance. Okay, so we're already familiar with the incomplete dominance. What is incomplete dominance? In the incomplete dominance, the dominant, okay, dominant triad or an allele is not completely dominant over recessive. ठीक है, कोडोमिनेंट में क्या होता है, दोनों मिलके एक्सप्रेस करते हैं, बोथ रिसेसिव एंड बोथ dominant, they show their characters or they show their expressions on the phenotype. Okay, so coming to the multiple allelism, here what happened, we have one gene called as I gene, and this gene has three types of alleles. Okay, A, B, and O. What is O? O is considered as, okay, there is no sugar polymer or an antigen on the surface of the RBC cell. ओके, आरबीसी सेल के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ओ. ठीक है, उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आई जीन के लिए यहाँ पे है टोटल 3 अलील.
ठीक है, यहाँ पे 3 एलील हैं एंड दिस इज एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसी बेसिस के ऊपर हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किया है। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग और अंडरस्टैंडिंग इन द लास्ट क्लास। हम लोग क्या देख रहे थे बेटा? जीन इंटरेक्शन। Okay, there were 2 types of gene interaction. One is intragenic interaction that I have already explained you. Okay, so this gene interaction occurs between the alleles of a single gene. एक जीन के अंदर जितने भी एलील्स हैं उनके बीच में ही इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या है? द इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स बिटवीन द जीन्स ऑन आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है बेटा, ये देखो यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूर में एक जीन है कंसिडर्ड एज ए, और यहाँ पे बी कंसिडर करो, तो कितना दूर है एक दूसरे से जीन्स, है ना? एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स हैं बट दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आप अगर बगल का क्रोमोसोम देखो तो यहाँ पे भी है। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नॉन अलीलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। तो इसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी। ओके बेटा, सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को और क्या नाम है? मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस वी कॉल इट, वी आल्सो कॉल इट एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों ही नेम आप ले सकते हो। यहाँ पे देख लो बेटा, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? यस, द जीन्स इन्वॉल्व्ड इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस are called polygenes. बेटा quantitative का मतलब क्या है बेटा? We are talking about numerical. Okay, I have understood, or you guys have understood, there are 2 types of inheritance, that is qualitative and quantitative. ठीक है, तो अब यहाँ पे quantitative inheritance जो देख रहे हो ये है बेटा polygenic inheritance. यहाँ पे we are taking the consideration of numbers. ठीक है, तो इन genes को हम बोलते हैं बेटा polygenes. ठीक है, and this quantitative inheritance is also called as polygenic inheritance. देखो बेटा नाम में है, poly means many, genic means gene, inheritance means what? Passing down of characters from parent to offspring. बेटा बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? It is the inheritance in which triads are controlled by several genes. देखो बेटा बहुत सारे genes हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं एक कैरेक्टर को। ठीक है, यहाँ पे आप और एक कंसिडर कर सकते हो, मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर या फिर एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा स्किन कलर। ओके, ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट। आपने देखा होगा ना, जैसे हम कहते हैं मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में बेटा एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। आप अगर कंसिडर करो तो एकदम जो पिच ब्लैक है, जो एकदम ब्लैक है, ये आप इसको कंसिडर कर सकते हो कंप्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, और इसको आप कंप्लीटली रेसेसिव एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। बट ये बीच वालों का क्या? ठीक है, हम इंडियंस हैं, हम व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के हैं, हमारा क्या है ना? तो ऐसे नहीं होता बेटा, हमारे ह्यूमन स्किन कलर में देयर आर सो मेनी वेराइटीज। ठीक है, एकदम डार्क फेयर है या फिर वेरी लाइटली फेयर है, या तो मुलैटो है। ओके, दैट इज इंटरमीडिएट ऑफ इफ वी क्रॉस बिटवीन अ प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव। हम लोग अभी पढ़ेंगे वो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्या रखना है? ह्यूमन स्किन एंड ह्यूमन हाइट। ओके, इट ऑल्सो कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? आप कंसिडर कर लो, हम इंडियंस जो है हमारा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है ना, गेहुआ कलर। वही आप अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे लोगों का गोरा रंग होता है ना, तो गोरे गोरे लोग होते हैं वहां पे। वही आप जाओ साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वहां पे क्या होता है बेटा? एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, जैसे नीग्रोज होते हैं। तो बेसिक होता है जेनेटिक्स उनका। ओके, जेनेटिक्स के अलावा उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलीजेनिक ट्रायड वेयर phenotype reflects the contribution of each allele. Okay, that is effective of each allele is additive. देखो बेटा इसका मतलब सिंपल है। ठीक है, जब 2 पेरेंट्स फ्यूज कर रहे हैं, क्या समझते हैं? 2 पेरेंट्स ने शादी कर ली, तो एक कोई डिफरेंट एरिया का है, अब एक पेरेंट कहीं और एक एरिया का है, तो जब उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होती है तो एक वेरिएशन आता है ना? तो वो वेरिएशन में क्या होता है बेटा? अलील्स ऐड होते हैं। ओके, दैट इज एडिटिव। जब ये जो इंडिविजुअल है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये भी किसी से शादी करेगा ना, तो ये फिर ऐड होंगे, ये कैरेक्टर्स फिर ऐड होंगे, फिर कुछ और वेरिएशन आएगा। ऐसे करते 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 बहुत सारे अलील्स और कैरेक्टर्स ऐड ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो बेटा, ये एग्जाम्पल है, प्लीज रिमेम्बर इट वेरी केयरफुली।
डिफरेंट स्किन कलर इन ह्यूमंस एंड ऑल्सो डिफरेंट हाइट। ठीक है, सब लोग 6 नहीं होते, सब लोग 4 नहीं होते। ठीक है, 4.5 है, 5.5 है, 6'1" है, 6'2" है, बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ हाइट्स हमारे पास अवेलेबल है ह्यूमंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन स्किन कलर की, प्लीज अज्यूम दैट देयर आर 3 जीन्स। ओके, सो A B C, ABC बेटा 3 जीन्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, तो इन जीन्स में बेटा डोमिनेंट ट्राइड कौन एक्सप्रेस कर रहा है? ये कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। ठीक है, तो डोमिनेंट फॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल है डार्क कलर के लिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे नीग्रो कलर। ठीक है, डार्क कलर का एक्सप्रेशन के लिए कैपिटल्स एंड द रिसेसिव फॉर्म्स A B C के लिए लाइट स्किन कलर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप आ जाओ, कोई भी जीनोटाइप में अगर सारे ही अलील्स डोमिनेंट हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको दिखेगा एकदम डार्केस्ट स्किन, जैसे ये हो गया, यहाँ पे सारे ही कैपिटल हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ही कैपिटल है, ये एकदम डार्केस्ट स्किन कलर है। वही चीज आप अगर जीनोटाइप में देखो, लाइट स्किन कलर हो गया। ठीक है, जहाँ पे सारे ही रिसेसिव हैं, ये एक पॉसिबल है। नाउ देयर इज एन अनदर पॉसिबिलिटी जहां पे 3 अलील डोमिनेंट है और 3 अलील रिसेसिव है, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? इन दिस केस यू विल सी द इंटरमीडिएट स्किन कलर। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट स्किन कलर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा मुलाटो। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मुलाटो। ये इंटरमीडिएट स्किन कलर है। ठीक है, इस लड़की को देख लो, शी इज इंटरमीडिएट, शी इज मुलाटो, जस्ट लाइक अवर इंडियन कलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ यू कैन सी हियर ह्यूमन स्किन कलर, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे ना बेटा, तो दिस ह्यूमन स्किन कलर इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड एज मेलानिन। ठीक है, कुछ लोगों में मेलानिन बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों के पास मेलानिन बहुत ज्यादा होता है उनका डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है बेटा, ज्यादातर काले रंग के दिखते हैं। ठीक है, जिनके पास मेलानिन कम होता है वो थोड़ा गोरे गोरे रंग के दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्वांटिटी ऑफ मेलानिन है, जिसके पास ज्यादा है या जिसके पास कम है, वो डिपेंड करता है 3 जीन्स के ऊपर बेटा, जो मैंने अभी अभी बोला ABC जीन। ठीक है, ABC 3 जीन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, अगर हम लोग प्योर लाइंस को क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया एकदम डोमिनेंट, ओके, वेरी डार्क पर्सन, जिसके पास 6 के 6 अलील डोमिनेंट है, क्रॉस्ड विद द वेरी लाइट, ओके, दैट इज रिसेसिव इंडिविजुअल्स। तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा बेटा? ऑफस्प्रिंग या फिर F1 जनरेशन में आपको दिखेगा इंटरमीडिएट स्किन कलर, वी कॉल इट एज मुलाटो, जिसका कॉम्बिनेशन ये होगा, 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव अलील। ठीक है बेटा, जब when 2 individuals with mulatto, that means यहाँ पे सेल्फिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फिंग हो रहा है। when 2 individuals with mulatto skin color marry, the skin color of the children will vary from different वेरिएशंस। यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे वेरी डार्क हो सकता है, या एकदम ब्लैक हो सकता है, या व्हाइट हो सकता है, या वेरी लाइट हो सकता है। डिफरेंट फिनोटाइप्स आपको दिखेगा बेटा। ठीक है, डिफरेंट फिनोटाइप्स दिख सकता है। अब यहाँ पे आप ग्राफ में देख लो, यू कैन सी हियर इन द ग्राफ, ओके, दिस इज इंटरमीडिएट 1। ठीक है, ये इंटरमीडिएट 1 हो गया, और यहाँ पे आपने ले लिया फेयरली लाइट। ठीक है, और यहाँ पे फेयरली डार्क, ओके, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे डार्क, और यहाँ पे आप अगर आ जाओगे तो यहाँ पे अल्बाइनो आएगा और यहाँ पे वेरी डार्क। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो ग्राफ है ये जाते रहता है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप जो प्यूनेट स्क्वायर देख रहे हो, ये सिमिलर है बेटा, जैसे क्या कहते हैं, टाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसा सिमिलर है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं आपके नीट में। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ह्यूमन स्किन कलर में कितने जीनोटाइप्स आपको दिखेंगे या फिर कितने फिनोटाइप्स दिखेंगे? ओके, तो आप ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपके कोई भी नोट्स है या कुछ भी है टेक्स्ट बुक में। ठीक है बेटा, यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर में आपको दिखेंगे 7 फिनोटाइप्स। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो बेटा, यू कैन काउंट हियर। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मुलाटो, फेयरली डार्क, फेयरली लाइट, लाइट डार्क, वेरी लाइट, वेरी डार्क। ठीक है, तो यहाँ पे 7 फिनोटाइप्स हैं एंड 27 जीनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप। ठीक है, आप जब फ्री होंगे ना बेटा, तो ये क्रॉस करके देखना। ठीक है, ये सारे आप गैमेट्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप गैमेट्स ले लो बेटा, कितने गैमेट हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, ये भी पूछ सकता है कितने अलीलिक कॉम्बिनेशंस बने, कितने गैमीट्स बने। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखो ह्यूमन स्किन कलर में आपको मिलते हैं बेटा 8 गैमीट्स। ठीक है, 8 गैमीट्स दोनों से, दोनों पेरेंट से। ठीक है, और 7 फिनोटाइप एंड 27 जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दिखाई है बेटा, वेरी ब्लैक दैट इज नीग्रो विद द वेरी लाइट, वी गेट द मुलाटो। यहाँ पे F2 जनरेशन में आपको मिला है 7 phenotype and 27 genotype from the 8 allelic combinations। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। इतना आप समझ जाओ तो बहुत है बेटा, इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है। तो इसके अलावा आपको और क्या एग्जांपल्स मिल सकते हैं, आप प्लांट्स में देख लो बेटा, कर्नल कलर ऑफ वीट। ठीक है, वीट का आप कर्नल कलर भी एग्जाम्पल में याद रखिए। एक ह्यूमन स्किन कलर, एक ह्यूमन हाइट। ये क्लियर हो गया बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो चीज, इट्स वेरी इजी। नाउ टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हमने देखा, मल्टी फैक्टर, तो ये पॉलीजेनिक के नेम्स हैं। जब हम लोग कहते हैं बेटा कि क्वालिटेटिव क्या है, तो क्वालिटेटिव का मतलब है बेटा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक को हमने बोल दिया क्वांटिटेटिव। जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, जिसका मतलब सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस अ कंप्लीट ट्राइड। मतलब एक ट्राइड के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, कोई बगल वाला जीन आके इंटरप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई एक ही क्रोमोसोम में कहीं नीचे बैठा है जीन, वो कुछ आके इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा नहीं होता। सिंगल जीन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है एक कंप्लीट ट्राइड के लिए। जैसे हाइट ऑफ द स्टेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो एग्जांपल, हाइट ऑफ द स्टेम के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हो सकते हैं 2 अलील, कैपिटल हो गया और स्मॉल हो गया, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव बोलते हैं पॉलीजेनिक के लिए। याद रहेगा आपको, ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो बेटा, सिंगल जीन एग्जिबिट कर रहा है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। देखो बेटा, अच्छे से याद रखना है, पॉलीजेनिक में क्या हो रहा है, बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए। पॉलीजेनिक, मेनी जीन्स आर इन्फ्लुएंसिंग ऑन सिंगल कैरेक्टर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लियोट्रोपी में सिंगल जीन एग्जिबिट्स मेनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। एक ही जीन है जो एक्सप्रेस कर रहा है बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए या फिर ट्राइड्स के लिए। जैसे देखो, ये एक सिंगल जीन है बेटा, ये कुछ ट्रेट ए भी दे रहा है, ट्रेट बी भी दे रहा है, ट्रेट सी भी दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। समझ आ रहा है बेटा ये सबको? नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। अभी ये ना आप पढ़ोगे बेटा, आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसे होता है और सिकल सेल अनीमिया कैसे होता है, एंड हाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, अभी आज नहीं एक्सप्लेन करूंगी इसको, जब हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब क्लियरली पढ़ेंगे बेटा, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, अब सिर्फ आप इतना समझ लो कि प्लियोट्रोपी क्या है। प्लियोट्रोपी है बेटा एक सिंगल जीन एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। अब एग्जाम्पल में बेटा याद रखो फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है नीचे, इन फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट जीन हैज मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। ठीक है, जो एक जीन है, ठीक है, वो बहुत सारे इफेक्ट्स दिखा रहा है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन शो करता है, स्किन पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम, रिडक्शन इन हेयर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड लाइक मेंडलिज्म को हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कुछ रीजंस थे बेटा जिनके वजह से मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। जैसे उसका मैथमेटिकल अप्रोच जो लगाया था मेंडल बाबा ने, वो अप्रोच एक्सेप्ट नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, और कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा पाए थे। तो इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, समझ नहीं आया था लोगों को, या फिर सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन कुछ साल बाद 3 साइंटिस्ट जो कि डिफरेंट एरिया से हैं, इन्होंने फिर रीडिस्कवर किया, अगेन उस पे काम किया जो मेंडल ने कहीं पे रोक दिया था। ठीक है, तो किन किन लोगों ने काम किया बेटा, वॉन शर्माक ऑफ ऑस्ट्रिया, ह्यूगो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड एंड कार्ल कोरेंज ऑफ जर्मनी। ठीक है, इन तीनों ने बेटा रीडिस्कवरी की ऑफ द मेंडल वर्क।
मेंडल वर्क जहां पे उसने स्टॉप किया था, इन्होंने वहीं पे स्टार्ट किया. दे चेक्ड वेदर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ट्रू, वेदर द डाइहाइब्रिड क्रॉस इज ट्रू. ठीक है, अगर ये क्लियर है, जो मेंडल ने बताया वो सही है, तो क्या है, जिससे रीजंस फैक्टर्स हो गए, जिनको आज हम बुलाते हैं जीन्स. ठीक है बेटा, तो ये सारे रीजंस इन्होंने चेक किए, इस पे वर्क किया, और इन्होंने बताया कि हाँ, जो मेंडल ने किया था वो बहुत अच्छा काम था, और ये जेनेटिक्स का बेसिस है. ठीक है, तो इन लोगों ने उनको एक रिकॉग्निशन दी मेंडल के वर्क में बेटा. ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. देखो बच्चों, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को, मुझे ऐसा लगता है, ये अब डिफिकल्ट समझते हैं ओके कॉन्सेप्ट को, बट ये डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत इजी है अगर समझ के पढ़ो तो. ठीक है, तो ये जो थियरी है ये बहुत ही सिंपल है. अगर आपको लॉज ऑफ मेंडल अच्छे से समझ में आए होंगे ना, तो ये आपको एकदम क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो किन दो लोगों ने दिया है ये थियरी बेटा? वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवेरी. ओके, सुटन एंड बोवेरी का नाम आपको याद रखना है. तो इन दोनों लोगों ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया है. ठीक है, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इन दिस थियरी, they noted that behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. बेटा मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने सब कुछ बताया जीन्स के बारे में. ठीक है, तो जीन्स हम लोग इसको आज नाम दिए हैं, उस टाइम पे उसने बोला था मेंडल ने उसको फैक्टर. ठीक है, तो फैक्टर ही जीन है, जीन ही फैक्टर है. ठीक है, तो उस टाइम पे बेचारे मेंडल को नहीं मालूम था कि हाँ भाई एक चीज होती है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, इतना सब उसको मालूम नहीं था. इतना मालूम था कि हाँ देयर इज समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड ही नेम्ड इट एज फैक्टर. ठीक है, लेकिन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मतलब इन पीपल ने, जैसे सुटन एंड बोवेरी ने जब ये रिसर्च स्टार्ट किया, उस टाइम पे बेटा माइक्रोस्कोपी का वर्क बहुत अच्छा हो गया था और लोगों को समझ में आ रहा था. ठीक है, तो दे हैव सीन और दे वर अवेयर अबाउट द सेल साइकिल, सेल डिविजन जैसे स्टेजेस हैं. ठीक है, मेटाफेज हो गया, अनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ये सारे चीजों को उन्होंने क्लियरली समझ लिया था. एंड दे व्हेन दे वर्कड ऑन इट, तो आपको पता चला कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स एकदम पैरेलल चलते हैं. बेटा चलना भी चाहिए, क्यों? बिकॉज क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन्स होते हैं. जैसे क्रोमोसोम बिहेव करता है उसी तरह जीन बिहेव करेगा. ठीक है, आप लोग ना, जब मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया था, तो मैं आपको हर चीज को क्रोमोसोम और जीन के तरीके से दिखा रही थी. ठीक है, ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रही थी. क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाए एक चीज कि क्रोमोसोम और जीन्स पैरेलल चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सी, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, दोनों ही पेयर में अकर करते हैं ना बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कैपिटल ए अगर दोनों ही डोमिनेंट है तो, कैपिटल ए स्मॉल ए. ओके, हेटेरोजाइगस कंडीशन स्मॉल ए. सो हियर आल्सो यू कैन सी दे अकर इन पेयर. अब यहाँ पे आप क्रोमोसोम की बात करते हो तो वो भी पेयर में ही अकर होते हैं. ठीक है, सो क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स और फैक्टर दे अकर इन पेयर. ठीक है, the two alleles of a gene pair are located on the homologous sites of a chromosome. ठीक है, homologous site, तो बेटा homologous site का मतलब क्या होता है? जैसे अभी एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये homologous chromosomes हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर एक जीन है तो यहाँ पे भी एक जीन है. ठीक है, so these are two alleles. Okay, two alleles of a gene paired. Okay, paired, they are located on the homologous site. Homologous मतलब क्या है बेटा? They are together. जो पेयर में होता है उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस. ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. अब आप इस डायग्राम में देख लो बेटा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर. जो मेंडल ने बताया था वहां पे वही तरीके का है यहाँ पे फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए को जब आप गैमेट्स ड्रॉ करोगे तो ए और स्मॉल ए. बट यहाँ पे देखो बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स. यहाँ पे भी क्या है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन करने के बाद जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमैटिड था डबल सेट ऑफ क्रोमैटिड हो गया. ओके, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. देखो बेटा, जब भी ऐसे होता है तो ये भी एक हेप्लॉइड क्रोमोसोम है. रेप्लिकेशन होने के बाद जो एक क्रोमैटिड है वो दो हो जाता है, बस प्लॉइडी चेंज नहीं होती, बस एक सेट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ऐड हो जाता है. मैम प्लीज एक्सप्लेन लास्ट लाइन. दक्ष, इट इज वेरी क्लियर बेटा, कुछ नहीं है यहाँ पे. देखो, हम जब भी एक जीन पेयर की बात करते हैं, देखो ये जीन पेयर है बेटा.
ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए दक्ष, ये जीन पेयर है। ठीक है, तो इस जो जीन पेयर है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एक क्रोमोसोम से, जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम से हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा। जैसे ये दो सेपरेट होके एक गैमेट यहाँ पे आ गया, एक गैमेट यहाँ पे आ गया है, ऐसे ही ये भी सेपरेट होके ये एक गैमेट बनाएगा और ये एक गैमेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में 3 ही पॉइंट याद रखना है बेटा, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। ठीक है, आप इस सेंटेंस पे इतना दबाव मत डालिए। आप यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, जो सेंटेंस दिखा रहा है ना वो यही है। दिस इज सेम सेंटेंस व्हाट इट इज शोइंग देयर। ठीक है, क्या दिखा रहा है बेटा, यहाँ पे देख लो जीन है और यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो इन दोनों के बीच में क्या बिहेवियरल सिमिलैरिटीज हैं। देखो बेटा, अक्कर इन पेयर, एज आई हैव टोल्ड यू, कैपिटल ये हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, दे अक्कर इन पेयर। ठीक है, फैक्टर्स, तो क्रोमोसोम्स भी दे अक्कर इन पेयर, तो इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। अब क्या हो रहा है, दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ जीन। अब अगर देखो बेटा, कैपिटल है, तो ये ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ये सेपरेट होंगे और एक अलील जाएगा एक गैमेट में और एक अलील जाएगा एक गैमेट में। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली क्रोमोसोम में भी सेम चीज हो रहा है बेटा। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा और एक क्रोमोसोम और एक गैमेट में जाएगा। ओके, सेग्रीगेट मतलब क्या, आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो सेपरेट होना, तो यहाँ पे सेपरेटिंग एट द ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ये समझ में आ रहा है बेटा। ओके, नाउ इफ यू गो टू द थर्ड पॉइंट, ये हो गया बेटा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मैंने आपको समझा दिया था बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर हम लोग जीन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है, जब हम लोग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये एक इंडिपेंडेंट पेयर है, ये एक इंडिपेंडेंट पेयर है। ठीक है, तो इन इंडिपेंडेंट पेयर्स में क्या हो सकता है, ये अलील इसके साथ ज्वाइन होने के लिए भी फ्री है और दिस ऑल्सो पॉसिबल। ओके, दो पेयर्स होते हैं इंडिपेंडेंट पेयर्स, तो उनमें एक अलील दूसरे पेयर वाले अलील के साथ इजीली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी हो रही है बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने जीन्स के टाइप में लिखा है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोमल टाइप में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोमल टाइप में। तो ये हो गए टू सेट ऑफ पेयर, यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे एक सेट पेयर है, तो ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। सेम चीजें बेटे, सेम चीजें। तो यहाँ पे आप जीन पे बात करते हो और यहाँ पे आप क्रोमोसोम पे बात करते हो, सिंपल। इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस विच इज पैरेलल। जैसे जीन को हम कहते हैं, सिमिलरली क्रोमोसोम को कह रहे हैं। आप अब जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बेटे, तो आपको ये सारी चीज ना बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे आओ। ठीक है, यू हैव स्टडीड दिस इन द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपने पढ़ा था बेटा माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में जो 5 स्टेजेस आते हैं वो भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगेटीन जो भी है वो सब आपने पढ़ लिया। बट यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, एनाफेज 1 देखो, एनाफेज 2 देखो। ठीक है, वही चीज बेटा यहाँ पे दिखाई गई है, मेयोसिस का एनाफेज 1 एंड यहाँ पे 2। ठीक है, जब भी मियोसिस हो रहा है तो आपको क्या याद रखना है बेटा, यू आर गोइंग टू गेट द जर्म सेल दैट इज हैप्लॉइड सेल्स, है ना। आपको यहाँ पे मिल रहा है हैप्लॉइड सेल्स। तो बेटा बहुत ही सिंपल होता है, 2n है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाने के बाद क्या मिलेगा, nn मिलेगा, फिर जाने के बाद आपको मिलेगा nn। इसको बोलते हैं बेटा मायोसिस। इट अकर्स इन 2 स्टेजेस, meiosis 1 एंड meiosis 2। बस यहाँ पे आपको सिंपल ये देखना है कि ये एनाफेज 1 है और ये एनाफेज 2 है, सेम चीज है। यही चीज आपको दी है अपने एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ प्लीज बी अटेंटिव। अब मैं क्या बोल रही हूँ सबको समझ में आना है, तो बेटा अटेंशन तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के 4 सेट हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना। सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था बेटा, एक क्रोमोसोम पेयर ये और एक क्रोमोसोम पेयर।
ओके, सो 2 क्रोमोसोम पेयर्स हो गए हमारे पास. ओके, दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर. ठीक है, वी हैव टेकन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनटू अ कंसिडरेशन. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने किया था बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कंसिडर करना है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग समझेंगे. तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं, 2 सेट हैं 2 पेयर के. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बेटा, इसको हम नेम कर रहे हैं, ऑरेंज वाले को ए, ग्रीन वाले को बी, येलो वाले को स्मॉल ए एंड रेड वाले को स्मॉल बी. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो two pair of contrasting characters during the gamete formation. ओके, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. देखो बेटा मियोसिस हो रहा है तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कोई भी क्रोमोसोम किसी के भी साथ जाके ज्वाइन हो सकता है. जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाके ज्वाइन कर सकता है या स्मॉल वाई के साथ. इसी तरह कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ज्वाइन कर सकता है या स्मॉल बी के साथ ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, इस केस में देख लो आप, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी भी हो सकता है. ठीक है, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये सारे गैमेट्स पॉसिबिलिटी होती है. तो अब यहाँ पे देख लो. ओके, यही पे चीज आप यहाँ पे देख लो, ये पॉसिबिलिटी 1 है. ओके, दिस इज पॉसिबिलिटी 1. तो यहाँ पे सिमिलर चीज आप यहाँ पे देख लो, नेम कर लो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. बेटा ये बस आपको समझाने के लिए ले रही हूँ, आप चाहे आर ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कोई भी अल्फाबेट ले लो, बस आपको समझ में क्या आना चाहिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है बस, और कुछ नहीं. ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बेटे, मेरे पेन का सब कुछ रेड रेड दिख रहा है मुझे. ओके, तो यहाँ पे देख लो, 1 लॉन्ग ऑरेंज ओके एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल. ये बेटा एनाफेज का दिखा रहे हैं ये लोग. ठीक है, एनाफेज में ये हो रहा है. और इसी तरह यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे है. ठीक है, ऑरेंज और शॉर्ट रेड है और यहाँ पे येलो और ग्रीन है. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं. देखो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस, कैपिटल ए इज जॉइनिंग विथ कैपिटल बी. ठीक है, स्मॉल ए ज्वाइन कर रहा है स्मॉल बी के साथ. तो यहाँ पे हमको ये 2 चीजें देखने को मिल गई, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है. बट व्हाट वी गॉट हियर, वी गॉट दिस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. ठीक है, तो ये हो गया. समझ आ रहा है बेटा? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे भी ले लो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. मैंने बोला ना, यहाँ पे आप देख लो क्या हो रहा है. नहीं नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 1 सेकेंड बेटा, ये थोड़ा रिवर्स करना है हमको. पता नहीं ये पेन को हो क्या जाता है, कभी कभी समझ ही नहीं आता. ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल बी और ये हो गया कैपिटल बी. सेम टाइप की लेबलिंग बेटा, सेम लेबलिंग, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ग्रीन को हमने कैपिटल बी में लिखा है और रेड को स्मॉल बी में लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, जो कैपिटल ए है वो किसके साथ असॉर्ट हो रहा है, कैपिटल बी इज असॉर्टिंग विथ स्मॉल बी, और यहाँ पे स्मॉल ये असॉर्ट हो रहा है कैपिटल बी के साथ. तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये आप पॉसिबिलिटी 2 में देख सकते हो और इन दोनों को आप पॉसिबिलिटी 1 में देख सकते हो. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर. यहाँ पे जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो इंडिपेंडेंटली गैमेट्स असॉर्ट करेंगे. ओके, चाहे वो किसी के भी साथ हो. ठीक है, किसी के भी साथ हो, ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है. बेटा इतना ही है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. किसी को समझ नहीं आया क्या ये चीज? इज देयर एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? बेटा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेललिटी ऑफ अ जीन एंड क्रोमोसोम.
ठीक है, जीन और क्रोमोसोम के बारे में देख रहे हैं, और ये जो डायग्राम है वो दिखा रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। ठीक है, क्लियर? ओके, व्हाट हैपेंड? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ओके, आई नीड रेस्पॉन्स बेटा, समझ में आ रहा है तो यस डालो, नहीं तो नो डालो। आई एक्सप्लेन वंस अगेन। क्लियर? ओके कृष्णा, ओके दक्ष, ओके जयदीप, ओके क्लियर। बेटा ये बहुत इजी है, ठीक है, आप इसको इतना दिमाग पे मत लो, बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ओके, सबको समझ में आ गया, आई एम हैप्पी नाउ। ओके, सो लास्ट चीज आपको यहाँ पे क्या देखनी है, जो क्रोमोसोमल थियरी बनाई गई थी सुट्टन एंड बोबेरी ने, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम है मॉर्गन। ठीक है, सुट्टन और बोवेरी ने बस एक थियरी बनाई थी बेटा, हाँ देखो जीन्स ऐसे काम कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स ऐसे काम करेंगे, दोनों पैरेलल चलते हैं, वो सही था। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था ना बेटा हम लोगों को, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। एंड इसने भी वर्क किया जैसे मेंडल ने किया था। मेंडल ने क्या लिया था बेटा वर्क के लिए? उसने लिया था गार्डन पी, ठीक है, जो पी प्लांट होता है वो लिया था। बट मॉर्गन ने यहाँ पे क्या लिया बेटा? इन्होंने लिया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोसोफिला को ले लिया। क्यों लिया? यहाँ पे रीजंस दिए हैं, बिकॉज इट कैन बी ग्रोन इन सिंथेटिक मीडियम। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में इनको ग्रो कर सकते हैं, इनका लाइफ साइकिल छोटा है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेनी यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, एंड देन मेल एंड फीमेल फ्लाइज कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल एकदम सेम है, नहीं बेटा, बहुत इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल और फीमेल के बीच में, एंड वेरिएशंस भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो बड़े आराम से। तो इन सारे रीजंस की वजह से मॉर्गन ने मेलानोगास्टर को, या फिर आप समझ लो इस मक्खी को लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बेटा, इतना कुछ था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। अब अगर आप जाके पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने थे। अक्कर इन पेयर, एक सेग्रीगेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा, ब्लेंडिंग नहीं होगा। एक अलील एक गैमेट में जाएगा और एक अलील और एक गैमेट में जाएगा। ठीक है, वो हो गया थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो 3 पॉइंट्स ही हैं जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए आपको चाहिए। ठीक है, अभी इतना सब होने के बाद जब मॉर्गन ने वर्क किया, ओके, ड्रोसोफिला को लेके, तब एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लिया जिसको हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज है क्या वो थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। लिंकेज इज अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब होता है? देखो बेटा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम ले लिया मैंने, ठीक है, क्रोमोसोम ले लिया, ओके, तो यहाँ पे एक जीन है, ओके, तो इसके बगल में ही एक जीन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जीन्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के अंदर है और बहुत ही क्लोज हैं, जैसे अगल बगल में बैठे हैं एकदम बाजू बाजू के, दे हैव सिट beside each other, बहुत ही close association. So this close association of genes is called as linkage. Okay, the closer 2 genes are to each other on the chromosome, the greater the probability that they will be inherited together during the meiosis. क्या हो रहा है देखो, जब क्रोमोसोम में गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब ये जो जीन्स बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, वो दोनों ही साथ में चले जाएं एक गैमेट के अंदर, ठीक है, इनहेरिट कर जाएं टुगेदर, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं बेटा लिंकेज। Okay, this is linkage, close association of genes. Now, there are 2 types of genes that you have to understand in this linkage concept. कौन से 2 genes हैं बेटा? Linked genes and unlinked genes. Linked genes में क्या हो रहा है? These are the genes that are inherited together with other gene as they are located on the same chromosome. जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो ये सारा पार्ट बेटा इनहेरिट होके चले जाएगा गैमीट में, जैसे है वैसे ही। Why? Because these 2 genes are very close to each other and the possibility is they will get inherited together as they are on same chromosome and they're very close to each other. अब जब हम अनलिंक्ड जीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, these are genes located farther apart from each other, जैसे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीन 1 है और यहाँ पे जीन 2 है, दोनों बहुत दूर हैं, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता है,
दे माइट बी ऑन द सेम क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पे जीन 1 है और यहाँ पे जीन 2 है। तो इन दोनों केसेस में ही हम बोल सकते हैं बेटा दीज आर अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, अनलिंक्ड जीन्स, इन दोनों को आप लिंक्ड जीन कह सकते हो। क्यों? एक ही क्रोमोसोम में एक ही जगह में बहुत क्लोज एसोसिएशन में है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लिंक्ड जीन एंड अनलिंक्ड जीन। क्लियर ना? तो इसका ही डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है बेटा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एक मिनट। ओके, यस। So linked genes क्या है? These are the genes that are inherited together with other gene as they are located on the same chromosome. सेम क्रोमोसोम है, साथ साथ में है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों साथ में इनहेरिट हो जाए। अनलिंक्ड जीन दे आर फार्दर फ्रॉम ईच अदर, सो पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस टू गेट इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अकर ऑन सेम क्रोमोसोम, ये सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट क्रोमोसोम में भी हो सकता है। अगर सेम में है तो दूर है, डिफरेंट क्रोमोसोम में है तो टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर भी अनलिंक्ड ही है। ओके, दे सिट वेरी क्लोजली टू ईच अदर, दे आर वेरी फार्दर अपार्ट, डू नॉट अंडरगो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है मैं आपको बोलेंगे बेटा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मायोसिस के टाइम पे जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो यहाँ का डीएनए और यहाँ के डीएनए के साथ मिक्सअप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन। ओके, रिकॉम्बिनेशन। इस रिकॉम्बिनेशन के वजह से ही आप देखते हो ना इन हमारे लाइफ फॉर्म्स में इतना वेरिएशन है। ठीक है, हम एग्जैक्टली कॉपीज नहीं है हमारे पेरेंट्स के, हम लोग कुछ डिफरेंट हैं पेरेंट्स से। ऑल्दो उनके हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, 50% पेरेंट्स मदर से आया है और फादर से आया है, बट हम लोग उसका कुछ डिफरेंट ही वेरिएशन है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो लिंक्ड जीन में क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाती है, अनलिंक्ड जीन में पॉसिबल है। ठीक है, इनहेरिटेड टुगेदर, लेस चांस ऑफ इनहेरिटिंग टुगेदर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब पेयरिंग, पेयरिंग है, तो ये दोनों जैसे पेयर में होते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी देयर आर सेम जीन्स एंड हैविंग डिफरेंट एलील। यहाँ पे जीन ए है और यहाँ पे जीन, तो यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों ही पेयर में होमोजाइगस डोमिनेंट है, और यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये येलो कलर का एक जीन है, पर्पल कलर का एक जीन है, तो यहाँ पे दो जीन्स दिखाए हैं। ठीक है, दो जीन्स के भी डिफरेंट एलील हैं। जो येलो वाला है उसमें होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट का, और जो पर्पल वाला है उसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इसको हम कहते हैं बेटा हम होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? तो यहाँ पे जो बाजू बाजू क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ को रिलेट नहीं करते, सिंक नहीं होता। डिफरेंट जीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स है तो अलील्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, जीन्स डिफरेंट है तो बेटा अलील्स भी सिमिलरिटी नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड? मैंने बताया ना बेटा, आप इसको भी हैप्लॉइड बोल सकते हो। ठीक है, इसमें एक ही क्रोमैटिड है और ये भी हैप्लॉइड है, बस डिफरेंस ये है इसमें एक क्रोमैटिड है, इसमें दो क्रोमैटिड हैं, और इन दो क्रोमैटिड्स को आप बोलते हो सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कब बनते हैं? जब इसका रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो आपको सिस्टर क्रोमैटिड मिलेगा। ठीक है, तो प्लॉइडी आपको कैसे याद रखना है? अगर एक सेंट्रोमियर है तो हैप्लॉइड, अगर दो सेंट्रोमियर है तो डिप्लॉइड। ठीक है, तो प्लॉइडी डिपेंड होती है बेटा नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स में नहीं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर में। ये चीज क्लियर है ना बेटा सबको? मैंने बताई है लास्ट क्लासेस में भी, इसको मैंने बताया है। ठीक है, अभी अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है? ठीक है, यही चीज मैंने आपको दिखाई लास्ट स्लाइड में। दिस इज पैरेंटल। ओके, ये समझ लो पैटर्नल, सॉरी ये फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर का क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ का कुछ डीएनए पार्ट इस क्रोमोसोम में चला जाएगा और यहाँ का वहां चले जाएगा। ठीक है, सो व्हेन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज DNA material during meiosis, it leads to combination of allele, which is called as crossing over. तो क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही रिकॉम्बिनेशन होता है, तो रिकॉम्बिनेशन के वजह से ही वेरिएशन आता है। ठीक है, ये सारे बेटा इंटर रिलेट करते हैं एक चीज से। ओके, सो होमोलॉगस क्रोमोसोम में आपने क्या देखा? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन दिखाता है, रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आता है। नाउ
हम लोगों ने देखा था बेटा टू टाइप्स ऑफ जीन्स, अब हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। जीन में कौन सा था, लिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो रहा है, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव अ टेंडेंसी to separate due to crossing over, they produce recombinant progeny besides the parental type। जैसे देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे एक डीएनए का पार्ट है, यहाँ पे एक डीएनए का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, दोनों का क्रॉसिंग ओवर होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो हमको रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। जब रिकॉम्बिनेशन मिलेगा तो हम लोग उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, जब आपको रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो मिलेगा बेटा आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप। जब पेरेंट की तरह ही है, एकदम सिमिलर टू पेरेंट है, उसको हम बोलते हैं पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप किसको बोलते हैं बेटा, जो एकदम पेरेंट की तरह है ऑफस्प्रिंग। जब हम आरटी कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप, तो यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ओके, एंड दे शो क्रॉसिंग ओवर। जब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट लिंकेज के बारे में, जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम एंड देर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशंस एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, वेरिएशन ही नहीं है नेचर में, देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल। ठीक है, तो ये केस बहुत रेयर है बट दिखा है ड्रोसोफिला में। ठीक है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, इनकम्प्लीट लिंकेज इज वेरी कॉमन बेटा, सारे एनिमल्स में, सारे प्लांट्स में आप देख सकते हो। बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, आप देख रहे हो वेरिएशन देख रहे हो। ठीक है ना, तो इसी चीज को यहाँ पे क्रोमोसोम्स के तरीके में मैंने दिखाया है आपको, ये इनकम्प्लीट लिंकेज है और ये कंप्लीट लिंकेज है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे जीन, यहाँ पे जीन, तो यहाँ पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होके जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है एंड देन यू गेट द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आल्सो, दैट इज रिलेटेड विद द इनकम्प्लीट लिंकेज। जब नॉन पेरेंटल आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, हाउ मेनी लिंकेज प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, इट डिपेंड्स कृष्णा पार्मर। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन, बट जो भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इट इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। एक बार क्रॉसिंग ओवर हो गया तो फिर वो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है कृष्णा, यस। अब हम अगर लिंकेज की बात करें तो डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। एवरी क्रोमोसोम इज डिफरेंट एंड एवरी क्रोमोसोम्स जॉब इज डिफरेंट। कुछ क्रोमोसोम में आप देखोगे कि 3 या 4 लिंकेज हैं टुगेदर, कुछ क्रोमोसोम में लिंकेज ही नहीं है या फिर 2 ही हैं। ओके कृष्णा, सी वी हैव 46 chromosomes and 23 pair. Every chromosome is different and the gene present is also different, and individual gene has information which gives a different type of characters or it will show different expression. Krishna, clear hai ye? Right? Yes, if it is yes. Okay. चलो, तो यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ही नहीं है, नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, सेम पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वही आ रहा है हमारे ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने डिफरेंस में दी है बेटा, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे बेटा लिंक्ड जीन्स साथ में है। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। देखो, अब ये है बेटा क्रोमोसोम और ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन बगल का क्रोमोसोम तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। ओके, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर एक्सीड 50%, ये भी चीज याद रखना है आपको। ठीक है, 100% क्रॉसिंग ओवर नहीं होता बेटा कहीं पे भी, ओनली 50% होता है पॉसिबल, 50% के ऊपर कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ओके, तो 50% आप एक इंडिविजुअल वेरिएशन हो तो 50% आप पेरेंटल टाइप हो गए। ठीक है ना, लिंकेज में क्या है, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप जो है बेटा, लिंकेज ग्रुप इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इंडिकेट्स द
नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। नाउ वेरिएबिलिटी विल बी इंक्रीज, डेफिनेटली जीन कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन दिखेगा। यहाँ पे वेरिएशन बहुत ही कम है बेटा, बहुत ही कम है वेरिएशन या रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन हियर। लिंकेज इट इज अ फिजिकल एसोसिएशन, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। फिजिकल एसोसिएशन हो सकता है टू आर मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या पॉसिबल है? देयर इज अ पॉसिबल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम टाइटली लिंक्ड है, ठीक है, ये एकदम टाइटली लिंक्ड है, यहाँ पे लूजली लिंक्ड है। तो जब लूज लिंक है तो यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेशन देख सकते हो, बट यहाँ पे नॉट पॉसिबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अभी बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रही हूँ जो मुझे कंप्लीट अटेंशन चाहिए सारे बच्चों की, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया बेटा? हमने देख लिया क्रॉसिंग ओवर अगर होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इफ हैपन्स, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं बेटा अनलिंक्ड। अनलिंक्ड जीन है इसीलिए तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अगर लिंक्ड है तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या? बोलो आप बताओ। इफ नॉट हैपेंड, ओके, इफ नॉट हैपेंड दैट मीन्स सिंपली इट मीन्स दैट ये लिंक्ड जीन है, ठीक है, लिंक्ड जीन है इसीलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। जब अनलिंक्ड जीन है तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉम्बिनेशन, डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। तो रिकॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो आपको ऑफस्प्रिंग में मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप, ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा पेरेंटल टाइप, ठीक है, एकदम 100% पेरेंटल टाइप, नो रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन हो भी रहा है तो बहुत लेस परसेंटेज में रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है ना। तो अब बेटा हम लोग देखते हैं केस 1, ओके। एक केस है यहाँ पे, केस 1 देख लो। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ओके, दोनों बगल के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है बेटा। ये कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो एज यू कैन सी दीज आर नॉट लिंक्ड जीन्स, दे आर अनलिंक्ड जीन्स, है ना, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ऐसे कुछ होगा, समझ लो, ठीक है, ऐसे हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो व्हाट विल यू फाइंड हियर? कैपिटल ए स्मॉल बी, ओके, हियर स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये आपको क्रॉसिंग ओवर होने के बाद मिला है कॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ये हो गया बेटा आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप, दिस इज रिकॉम्बिनेंट टाइप। जब दूर होते हैं जीन्स तो तब क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है इसका परसेंटेज क्या होता है बेटा? इट कीप्स इंक्रीजिंग, ठीक है। जब जीन्स दूर होते हैं तब रिकॉम्बिनेंट टाइप जो मिलता है इसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज बढ़ता रहता है, ठीक है, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप। अगर केस 2 देख लो बेटा, केस 2 में क्या हो रहा है? अगेन दो क्रोमोसोम्स हैं बट दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, ओके, दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। अब अगर मुश्किल से अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी गई, अगर मुश्किल से इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी गया तो जो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर है ना बेटा, दैट इज रिकॉम्बिनेंट टाइप, इट विल बी वेरी लेस, वेरी लेस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है जितना दूर जीन्स हैं तो उतना ही आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है परसेंटेज में। जितना करीब है रिकॉम्बिनेशन टाइप कम है परसेंटेज में और पेरेंटल टाइप ज्यादा है, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप विल बी मोर, ओके। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एज आई हैव टोल्ड यू, मॉर्गन हैज डन द एक्सपेरिमेंट, राइट, ही डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। तो he took two crosses, cross 1 and cross 2. In cross 1 he took yellow body and white eyed female, okay, brown bodied red eyed male, ठीक है, इसको क्रॉस किया और इसको भी क्रॉस में लिया, व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, ये इसका जीनोटाइप है, ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है ये जीनोटाइप है।
तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, यहाँ पे आप देख लो बेटा, ये कैरेक्टर शो कर रहा है. Oh, 1 minute. If you see here, you can see dominant is expressed as plus. Okay, dominant means wild type. Recessive means it's just recessive, not expressing. तो यहाँ पे जो plus indicate हो रहा है बेटा, it is expressing on dominant. अगर dominant है तो plus दिखाया है साइन. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो, या फिर मॉर्गन ने किया था, बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग्स. ओके, बॉडी कलर में डोमिनेंट कौन सा है, ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव, रेड आई इज डोमिनेंट, व्हाइट आई इज रिसेसिव, नॉर्मल विंग्स एंड मिनिएचर विंग्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं देयर आर 2 क्रॉसेस. ओके, क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2, यही चीज तो मॉर्गन ने की थी, है ना बेटा, यही चीज मॉर्गन ने की थी. तो आप यहाँ पे देख लो. ओके, दीज आर द क्रोमोसोम्स एंड दे आर close with each other. So in the cross A, you can see these 2 genes are very close to each other. ठीक है, close to each other हैं parental type में. तो जब आप इसको क्रॉस करोगे F1 जनरेशन में तो आपको मिलेगा कुछ. ठीक है, देखो बेटा, आप एग्जाम्पल ले लो तो कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b. ठीक है, ये आपको मिला है, समझो यहाँ पे कुछ. ठीक है, समझो ऐसा मिला है. तो जब आप इसका सेल्फिंग करोगे, व्हेन यू डू इट सेल्फिंग, तो आपको मिला है पेरेंटल टाइप 98.7%. क्यों मिला है, क्योंकि लिंक्ड जीन्स है ना बेटा, दे आर लिंक्ड. लिंक्ड मींस व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लेस. तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट टाइप में सिर्फ ओनली 1.3% दिखाया है. ठीक है, तो सेम चीज आप अगर क्रॉस बी में देखो तो यहाँ पे जीन्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से. क्रॉस बी में दूर है, क्रॉस ए में बहुत करीब है. जब यहाँ पे दूर है तो आपको F2 जनरेशन में जब आपको गैमेट्स मिलेंगे, सो पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, पेरेंटल टाइप तो होगा, ज्यादा होगा ही होगा, बट रिकॉम्बिनेंट टाइप देखो इट हैज इंक्रीज्ड. लिंक्ड जीन्स इन क्रॉस ए, दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, पॉसिबिलिटी इज ओनली 1.3% आपको दिखा है. बट इन द क्रॉस बी रिकॉम्बिनेंट टाइप इज increased in the percentage. क्यों, क्योंकि दूर है ना बेटा, genes are very far from each other. So by this experiment, what did major findings Morgan did was, क्या देखा उन्होंने, जब 2 genes हैं, they did not segregate independently and F2 ratio is deviated from 9:3:3:1. जब मेंडल ने देखा था बेटा F2 जनरेशन में, तो हमको ये मिला था 9:3:3:1. बट यहाँ पे जब मॉर्गन ने किया तो ये नहीं मिला, एकदम से सेग्रीगेट नहीं हुए जैसे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होना था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होना था, बट यहाँ पे नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द रीजन इज लिंकेज बेटा. ठीक है, when 2 genes were situated on same chromosome, proportion of parental gene combinations was much higher than the non-parental. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से लिंकेज हो रहा है पेरेंटल टाइप का. ये है बेटा ऑब्जर्वेशन. तो सेम चीज आप अगर यहाँ पे देख लो तो वही चीज जो मैंने बताई सेम चीज है. ठीक है, तो वेरी टाइटली लिंक्ड है तो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड है तो 37.2% लिंकेज. ठीक है, सो टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लेस रिकॉम्बिनेशन एंड लूजली लिंक्ड जीन्स शो हाई रिकॉम्बिनेशन. ठीक है बेटा, so that's all for today. जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड लीव. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन का आप आंसर करते जाओ. ओके, आई नो टाइम इज डन, बट स्टिल the experiment shown in the given figure has been carried out by Morgan to show the phenomenon of linkage and recombination. ठीक है, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया to show the linkage and recombination. In cross 1, the genes are tightly linked. Okay, ठीक है, तो cross 2 में genes are loosely linked. So what will be the percentage of recombinants produced in cross 1 and cross 2 respectively? बहुत इजी है बेटा, अभी अभी हमने देखा. वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा. अदर्स, आई नो आपको जाने की बहुत अर्जेंसी है बेटा, आंसर तो करके जाओ. यस लूसीफर, यस भावनगर, वेरी गुड. यस चेतन. सो बहुत सिंपल है बेटा, क्रॉस 1 में क्या हो रहा है 1.3% है एंड क्रॉस 2 में 37.2 है. क्यों है बेटा, यहाँ पे लूजली लिंक्ड है.
ठीक है, लूजली लिंक्ड है और यहाँ पे टाइटली लिंक्ड है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, सो दैट्स ऑल बेटा, वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। कल हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो जेनेटिक मैपिंग के बारे में देख के हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में जाएंगे, ठीक है, ये सब चीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, सो टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय, बाय बाय।